So, good morning, everyone. Thank you for joining us today. We have our session today by Dr. Hemi Sonte. He's completed consultant endocrinologist and one of the handful obesity medicine specialty in India and from the US. She is the director of Hemi's Diabetes, Obesity and Thyroid Clinic in Gurugaon in Haryana and also a senior consultant endocrinologist at Max Hospital in Delhi. She is done diploma in gynecology from AD Haryana Medical College, after which she changed year career path and did medical residency in US, same future specialty in obesity medicine, endocrinology and diabetes from the US and UK. She has been conducting regular education session in incorrect awareness among people about common medical and lifestyle associated disorder. Today we also have Ms. Shilpa Ma'am, who is a Chief Clinic Nutrition and Diabetes Educator with Dr. Hemi is here team. She is also Beatrice Nutrition. Today about both of them will be talking about how to be fit at 50 and beyond. We would also like to thank you Bloom community and Miss Malvika Ma'am, founder of Bloom, to join us today. Bloom is an online platform which after support to women going through menopause and have been doing great work. So without a future daily time, I would like to invite Dr. Hemi ma'am. So over to you ma'am, you can start the session. Thank you, Yogita, and thank you everyone for joining in today. And thank you so much, Malvika, for being here with us today. And I have Mrs. Shilpi with me, the Chief Nutritionist and Diabetes Educator in our team. And as you all know, we've been doing these educational sessions over a long time for everybody. And, more so to create awareness about a lot of these health issues, which are very common, but not always addressed properly. कितनी चीजें होती हैं जो हम सब लोग सफर कर रहे होते हैं और कई बार साइलेंटली सफर कर रहे होते हैं. गूगल पे चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, काफी सारी होती है जिसमें देयर लॉट ऑफ कैवियट्स बिहाइंड दैट. कई सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं जो हमें हमेशा क्लियरली नहीं पता होते. वही सब चीजें एड्रेस करने के लिए वी डू दीज सेशंस टाइम एंड अगेन अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स. सो आज हम बात करेंगे हाउ टू बी फिट एट 50 एंड बियॉन्ड. सो ये सेशन जो है ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये उन आदमियों के लिए भी है. इट्स फॉर मेन ऑल्सो हु आर अ बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर all these women around, be it their mother, wife, sister, daughter, whoever it is. So it's not just for women but for men also, and this is something which each one of us at some point is going to go through, and it's important for us to understand what it involves and what all we can do to continue to be fit at 50 and much more beyond that. So what is it that is different about 50? So a lot of changes which happen around this time. And, if we talk about a person in their 50s, be it a man or a woman, you have this, the older generation that we have to take care of. We have the younger generation that we are responsible for. This is also the time where we want to take care of ourselves as well, because we are at that crossroad where if we do the right things, we are going to do pretty well. If we still do not do the right things, these lifestyle disorders will take a toll on us. A lot of personal changes which happen professionally. It is kind of a different stage where you're at the peak of your professional ladder, but at the same time the personal issues and health issues start to crop up significantly. The hormonal changes which happen, और ये हार्मोनल चेंजेस जो है सिर्फ औरतों में ही नहीं आदमियों में भी होते हैं ये, और हार्मोनल चेंजेस जिसको हम एंड्रोपॉज कहते हैं. So जैसे मेनोपॉज औरतों में होता है, in men we have andropause. So they are also going through these changes. कई सारे mental health issues which start to crop up at this point of time because of a lot of different reasons, be it stress, be it professional problems or personal problems. So काफी सारी चीजें जो change होती हैं. Now, what is the good stuff which happens in 50s? And I would always like to start on a positive note. एक तो ठीक है 50s के बाद no more periods, no more premenstrual symptoms,
No more of that living life on a 2 week on, 2 week off basis, having to carry those pants around with you like we carry diapers for babies around. No more menstrual headaches. So the migraines with the periods, they tend to go down. For women who have had issues with uterine fibroids, इनकी वजह से heavy bleeding हो रही होती है, कैंसर के chances होते हैं, after menopause ये fibroids shrink होना शुरू हो जाते हैं, which make things easier for us. You can have sex without pregnancy worries. And also, you're at that stage where you have done your bit, you have proven yourself to yourself and other people around you. No more pretense and, adding on to that increased confidence and inner strength. Now, what are the, common perimenopause symptoms? This was one of the specific areas which we wanted to talk about today. We've had a session on menopause earlier, also around a few months ago, in which we even had a gynecologist with us, Dr. Kiranjeet. This time, we particularly wanted to talk about the symptoms which come up during this phase. So, जो ये perimenopause वाला phase जो है, it can last anywhere between 3 to 7 years time before you really hit that menopause. कि जब हमारा पूरा 1 साल तक अगर हमारे पीरियड नहीं हुए तो उसको कहा जाता है कि अच्छा अब हमारा मेनोपॉज हो गया है. उसके पहले वाला फेज जो है इज व्हाट वी कॉल एज पेरीमेनोपॉज सिम्टम्स. सो कई सारे मूड चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, इरिटेबिलिटी. All of these can add on to issues with depression. But it is not that just because somebody is going through menopause that they are going to have depression. So let's be clear about that. So mood changes, mood swings और depression में कहीं ना कहीं एक वो difference रहता है. And ये जो difference है उसके बारे में हमें we should be reaching out to healthcare professionals and see whether it is more of that clinical depression which is a problem, or is it just those physiological mood swings which are happening, and how to deal with that. Concentration में problem होना, एक वो brain fog जिसे कहते हैं कि कुछ रखा है वो याद नहीं आ रहा, अभी किसी से मैं बात करने लगी थी, पता नहीं क्या चीज के लिए मैंने कॉल किया, मुझे याद नहीं आ रहा. So some of that brain fogging which happens, some degree of fatigue. एक जो बहुत कॉमन चीज जिससे औरतें सफर करती हैं वो कई बार होते हैं हॉट फ्लैशेस. अब दिन में होते हैं हॉट फ्लैशेस तो फिर भी आसान है उसको मैनेज करना कि अच्छा ठीक है एसी हमने चला लिया, फैन चला लिया, कूलर चला लिया, व्हाटएवर. प्रॉब्लम टेंड्स टू बी व्हेन दीज हॉट फ्लैशेस आर बॉदरिंग यू इन द नाइट, जिसे फिर हम नाइट स्वेट्स वगैरह कहते हैं कि रात में नींद नहीं आती है, उसकी वजह से बार बार उठना पड़ता है बिकॉज ऑफ ऑल दोस हार्मोनल चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग इन द बॉडी. Sex drive कम होना, which can be because of various reasons, not just menopause. So यहाँ पे एक और भी चीज कहना चाहूंगी, अगर हमारी sex life healthy है before this phase, then you are likely to go through a healthy sex life during menopause and after that also. So it is not that just because I am, about to get perimenopausal or I'm going to go through menopause that we start worrying about these things. Some degree of weight gain which tends to happen around this time because of the metabolic changes which are happening, and particularly around the belly area. So जो पेट के आसपास fat accumulation है ना, उसके साथ मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की प्रॉब्लम. सो उस चीज को हमें कंट्रोल में रखने की जरूरत रहती है. यूरिनरी इश्यूज. सो काफी बारी आपने सुना होगा, यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस थिंग योरसेल्फ के व्हेन यू आर कॉफिंग और स्नीजिंग देयर इज सम लीकेज ऑफ यूरिन. उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है. एक होता है हमारा अर्ज इनकॉन्टिनेंस के अगर किसी को यूरिन पास करने जाना है तो वो बस तुरंत जाना ही जाना है, रोक नहीं पाते हैं. और ये चीजें जो है काफी बारी हमारी होती हैं बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. So for women, if they've had a difficult labor or difficult delivery, they can have issues with stress incontinence later on in their life also, क्योंकि
टिश्यूज जो है वो हमारा थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं, द मसल स्ट्रेंथ जो है वो हमारी कम हो जाती है एज वी एज, एंड दिस इज व्हाट कैन लीड टू इश्यूज विद यूरिन इनकॉन्टिनेंस। वैजिनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से इचिंग या इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। सेक्स में प्रॉब्लम आ सकती है उसके साथ। अगेन इट कैन वेरी वेल बी एड्रेस्ड विद सर्टेन मेडिकेशंस, लुब्रिकेंट्स, a lot of different options which are available. एंड कई बार इस टाइम के आसपास ब्लोटिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। सो ये तो हो गए हमारे इन अ वे फिजिकल सिम्टम्स जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, औरतों में तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन फॉर मेन ऑल्सो दे ऑल्सो हैव सिमिलर सिम्टम्स इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक लो एनर्जी, लैक ऑफ फोकस, मसल लॉस, इरेक्शन में प्रॉब्लम आना, मोटिवेशन कम होना, फोकस कम होना। So, a lot of times, you know, as a couple, also, it is something which we need to work on things together and not take it as a phase, which is, you know, it is not a disease that we are going through. It is a physiological stage that we are going through in life, and whatever problems come in the way, we have to deal with them accordingly. So, in addition to these, you know, physical symptoms that we talked about, दूसरा जो चीजें होती हैं, मेनोपॉज का इफेक्ट होता है हमारी हार्ट हेल्थ पे भी। सो मेनोपॉज के पहले जो हमारे फीमेल हार्मोन लेवल्स वगैरह होते हैं वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव रहते हैं। दिस इज अ नेचर्स वे ऑल्सो टू कीप अस हेल्दी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स। सो जब ये फीमेल हार्मोन लेवल्स हमारे कम होना शुरू हो जाते हैं तो हमारा हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, एंड इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ men our age. एक होता है मेटाबॉलिक हेल्थ। मेटाबॉलिक हेल्थ से मेरा मतलब है चीजें जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, शुगर के लेवल, इन सब चीजों पे असर पड़ना। Bone health. Bone health is one of the very important aspects that I would like to talk about because bone health is something जो ना तो एकदम से खराब होती है ना इसको एकदम से ठीक किया जा सकता है। और कई सारी चीजें हैं जो डाइट में भी और एक्सरसाइज में भी जो हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करने में मदद कर सकती हैं विदाउट नीडिंग अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस फॉर दैट। So this is something which we have to address for each and every individual differently. Shilpi ma'am will be talking about the calcium sources also जो हमारा bone health maintain करने में मदद करती हैं। फिर है हमारा mental health. सो कई सारे जो ये एक तरीके से जो हम फेज से गुजर रहे होते हैं, बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं, पेरेंट्स बड़े हो रखे हैं, उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कई सारी चीजें जो हमारे लाइफ में आती हैं उस समय पे उनका हमारे मेंटल हेल्थ पे डेफिनेटली असर पड़ सकता है, स्पेशली विद मूड स्विंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। इट कैन डेफिनेटली टेक अ टोल ऑन अस एंड लैक ऑफ स्लीप बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। वैजिनल सिम्टम्स जैसे कि मैंने बात करी पहले, एंड सेक्सुअल सिम्टम्स ऑल्सो। अब ये तो बात हुई कि हाँ प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, क्या क्या फेजेस हो सकते हैं हमारे, बट हमें करना क्या है। सो एक तो जरूरी चीज रहती है, इफ यू फील यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स एंड यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ समथिंग, प्लीज सी योर डॉक्टर एंड सीक टाइमली हेल्प। जैसे हम अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरीके से साल में एक बारी अपनी सर्विसिंग कराना बहुत जरूरी है, चाहे हमें कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, ताकि प्रिवेंटिव तौर पे चीजों पे काम किया जा सके। और कई चीजें होती हैं जो हम रियलाइज ही नहीं करते कि हाँ इट इज अ प्रॉब्लम, बट अगर उसको टाइम पे एड्रेस किया जाए तो वो आगे बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती है। एंड जो भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे हॉट फ्लैशेस हैं या नाइट स्वेट्स हैं या मूड स्विंग्स वगैरह हैं, उनका एक सही कारण पता होना भी जरूरी है। कई बारी हार्ट प्रॉब्लम्स में भी हमारे को पैल्पिटेशंस या दिल की धड़कन तेज होना, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। एंड औरतों में हार्ट डिजीज के वो टिपिकल सिम्टम्स नहीं रहते हैं कि हमें चेस्ट पेन हो रहा है, कंधे में जा रहा है, ये टिपिकल सिम्टम्स नहीं रहते हैं औरतों में। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर एंड डिस्कस द सिम्टम्स कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। And we just want to make sure it is related to menopause and not because of any other medical condition. So चाहे वो thyroid disorder हो या heart condition हो
या क्लिनिकल डिप्रेशन, या कई बार बॉडी एक्स एंड पेन्स जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, या ऑस्टियोपोरोसिस, या बोन डेंसिटी कम होने की वजह से, बोन वीकनेस की वजह से बॉडी एक्स एंड पेन्स हो सकते हैं, जिनको आराम से मैनेज किया जा सकता है if we work on that on time. So understanding your body is important, and discussing things with your doctor is very important, be it your gynecologist or physician, whoever you are comfortable with. So इसके बारे में किया क्या जाए? Of course, I think जिन्होंने भी अब तक हम लोगों के सेशंस वगैरह अटेंड किए, डाइट के बिना तो हमारी बात बढ़ती नहीं आगे. And that's why we have Ms. Shilpi with us. She will talk about the diet part briefly as well. Exercise. एक्सरसाइज को तो अपना विटामिन ई समझ करके चलिए, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता. एंड एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं, जस्ट टू मेंटेन आवर वेट, कि जितना मेरा अभी है वेट मैं उसको मेंटेन कर सकूं, हमें 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो या एरोबिक एक्सरसाइज चाहिए हफ्ते में 5 दिन. सो चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो, चाहे वो स्विमिंग, रनिंग, जुम्बा, whatever you like doing, any of these things 5 days a week, 30 minutes a day to maintain our weight. अगर हम कोशिश कर रहे हैं वेट लूज करने की, तो हमें 1 घंटे का कार्डियो चाहिए हफ्ते में 6 दिन. कीपिंग इन माइंड, ऐसा नहीं है कि मेरा कार्डियो का लेवल और किसी और का कार्डियो का लेवल जो है, इंटेंसिटी का लेवल, वो सेम होगा. हो सकता है मेरे लिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मेरा अच्छा कार्डियो हो जाए, किसी और के लिए 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी उनको ज्यादा कुछ महसूस ना हो. सो डिपेंडिंग ऑन देयर ओन फिटनेस लेवल. दूसरा जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है वो काफी बारी हम इग्नोर कर देते हैं, एंड वी डोंट रियली स्टार्ट डूइंग देम जब तक प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है, कि डॉक्टर साहब मुझे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है. वी हियर अबाउट दैट अ लॉट. एंड स्पेशली जो लोग पतले दुबले होते हैं, इनहेरेंटली जेनेटिकली पतले दुबले होते हैं, उनको लगता है कि शायद एक्सरसाइज करने की हमें जरूरत क्या है, हम तो वैसे ही पतले दुबले हैं, एक्सरसाइज करूंगा तो तुम्हें डिसअपियर ही हो जाऊंगी, या मैं तो बिल्कुल ही सुकड़ी हो जाऊंगी या कुछ. ऐसा कुछ नहीं है. एवरीबडी नीड्स एक्सरसाइज, whatever size, shape, age we are, whatever fitness level we are, we all need exercise, and सबके लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज है जो करी जा सकती है. So let's not run away from that. So breathing exercises, cardio, and I really cannot emphasize it enough. It is a strength training for women particularly. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, एंड एज अ रिजल्ट हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है. कोई और दवा का उतना इफेक्ट नहीं होता जितना हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इफेक्ट होता है हमारी बोन हेल्थ पे. एंड जैसे कि हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी और 1 महीने में मेरी बोन हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी. दिस इज समथिंग विच वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग लॉन्ग टर्म. इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग. एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमें चाहिए अराउंड 3 days a week, 1 hour for each session. That much is enough to help with the strength training part. The other, treatment methods which can help with the symptoms around menopause, depending on what symptoms you have, can be acupuncture, massage therapy, which can be very helpful in relaxing you. Sometimes psychotherapy might be needed depending on your symptoms. There are certain phytoestrogens जिनकी supplements भी available होते हैं, और कुछ हमारे foods भी हैं which are rich in phytoestrogens which can help us. And Shilpi ma'am will be talking about that also. And of course, hormone replacement therapy. Hormone replacement therapy का somehow India में उतना लोग, somehow people don't tend to be so much open-minded about hormone therapy. Because of a lot of different reasons. And I feel, just a second. So hormone replacement therapy जो है, it is a very safe treatment method to help with these menopausal symptoms. And it's actually one of the most effective therapy which has been seen
to help with a lot of these perimenopause symptoms issues, be it hot flushes, night sweats, the mood swings, the effect on bone health, effect on heart health. So it can be very useful for a lot of these problems, including the vaginal dryness, mood changes, sleep issues. कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमारी हार्मोन थेरेपी के साथ में काफी इम्प्रूव कर जाते हैं, एंड इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रीट दीज मेनोपॉजल सिम्टम्स. सो हार्मोन थेरेपी, कई बार आप लोगों ने सुना होगा पीसीओएस के लिए भी हार्मोन थेरेपी यूज करी जाती है. वो डिफरेंट रहती है मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी से, और उसमें डिपेंड करता है कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम रह रही है, और किस तरीके की हार्मोन थेरेपी आपके लिए ज्यादा ठीक है. And this is what you have to discuss with your doctor, be it the gynecologist or the endocrinologist, with whom you can discuss about the menopause hormone therapy. And जिनका अर्ली मेनोपॉज हुआ है उनके लिए तो और ज्यादा ये रिकमेंडेड रहता है कि वो एटलीस्ट 5 या 6 इयर्स के करीब तक हार्मोन थेरेपी लें, ताकि बोन हेल्थ वगैरह और हार्ट हेल्थ वगैरह पे पॉजिटिव इफेक्ट्स रहें, एंड जो बाकी के अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम्स वगैरह रहते हैं उनमें काफी आराम मिल जाता है. So in addition to this, what all do I need to do to ensure I'm doing fine? एक तो गाइनी एग्जाम जिसमें पैप स्मीयर एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी हो, जनरल हेल्थ चेकअप, अपना ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट वगैरह में ब्लड काउंट, लिवर किडनी फंक्शन, शुगर के लेवल, कोलेस्टेरॉल, विटामिन लेवल्स एक्सेट्रा. अब यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारी बॉडी इस तरीके से बनी है कि जब तक 80% हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम जब तक खराब नहीं होता है तब तक हमारे ब्लड टेस्ट में एबनॉर्मैलिटी नहीं आ रही होती है. So just because the blood test levels are totally normal does not always mean that everything is fine. So ये जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, ये हमें देखना रहता है कि एक इंडिविजुअल ओवरऑल कैसे रह रहे हैं, ताकि उस हिसाब से हम गाइड कर सकें. अल्ट्रासाउंड का भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जो ये मिड एज वाला टाइम होता है, जब हमारा बेली फैट वगैरह एक्यूमुलेट हो रहा होता है, फैटी लिवर के चांसेस रहते हैं, मेटाबॉलिक हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, तो आप ये समझ के चलिए कि अल्ट्रासाउंड जो होता है लिवर का, उसमें फैटी लिवर तब तक नहीं दिखाई देता है जब तक 1/3 लिवर में फैट डिपोजिशन नहीं हो रखा. सो जस्ट बिकॉज कि अल्ट्रासाउंड ऑफ द लिवर में कोई फैटी लिवर वगैरह नहीं है, does not always mean that we do not need to have a diet which is healthy and rich in fiber. So all of these things have to be taken with a pinch of salt. So please discuss these reports with your doctor and don't just think कि blood test ठीक है, ultrasound ठीक है, तो बस everything is okay. So and again blood pressure, ECG करवा लेना जो है वो recommended रहता है. Mammogram every few years, depending on your family history and your own personal history with any of the cancers. Bone density check is recommended initially, and then every 5 years thereafter, to make sure कि bone density हमारी ठीक रह रही है, and we don't need to do anything else particularly for that. एक और जो चीज रहती है, again, which I don't see a lot of people in India understanding about it or doing it, and that's why I bring it up in most of my presentations, is about the need for vaccination for adults. अब कोविड के बाद तो फिर भी हुआ है कि लोगों में थोड़ा सा एक अवेयरनेस आ गया है कि हाँ हमें वैक्सीन लगवाना है, या ऐसा कुछ है कि हाँ एडल्ट्स के लिए वैक्सीन है हमारी. सो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो हमारा हर साल रिकमेंडेड रहता है अक्टूबर के महीने में. दूसरा रहता है शिंगल्स वैक्सीन जो 50 एंड अबव के लोगों में रिकमेंडेड रहता है. टोटल 2 डोज होती है हर्पीज जोस्टर के अगेंस्ट. सो ऐसा नहीं है कि हर्पीज जोस्टर कोई नई तरीके की बीमारी आ गई है. बीमारी तो बहुत सदियों से चली आ रही है, लेकिन उसका वैक्सीन इंडिया में अब आया है. यूएस में तो 10-12 साल पहले भी था वैक्सीन, लेकिन इंडिया में अब आया है. इसीलिए अब हम ये प्रोटेक्शन ऑफर कर पा रहे हैं अपने पेशेंट्स को,
इसीलिए आप लोगों ने अब टीवी वगैरह पे भी एड्स देखे होंगे शिंगल्स वैक्सीन के। फिर दूसरा रहता है न्यूमोनिया वैक्सीन, जो 65 एंड अबव एज के लिए रिकमेंडेड रहता है। कई बारी कम एज पे भी रिकमेंडेड रहता है अगर दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज या लंग डिजीज वगैरह। सो ये जो है, अगेन यू हैव टू डिस्कस विद योर डॉक्टर वेदर यू नीड टू गेट दैट डन राइट नाउ और एट आफ्टर 65 years of age। एंड टेटनस वैक्सीन जो है एवरी 10 years टिल 65 years of age। एंड उसके बाद बस एज नीडेड बेसिस पे रहता है, इफ देयर इज एनी इंजरी और एनीथिंग। So that brings me to an end of my presentation, and I would like to say that we have to take menopause as me, no pause. So it is not a disease that we have to suffer. It is not a phase which has to be problematic or anything. We need to find solutions for the problems that we are experiencing and reach out to your healthcare providers to discuss more about that. I would now like to invite Dr. Shilpi to take the presentation forward. She will be talking about the few important things with regards to diet. And over to you, Dr. Shilpi. I'll just stop sharing my screen. थैंक यू डॉक्टर हेमी। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे ही आ जाती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। जैसा कि डॉक्टर हेमी ने डिस्कस किया कि मेनोपॉज पॉज लेने का टाइम नहीं है, इसमें ये जस्ट एक फेज है आपकी लाइफ का, जिसको हम हेल्दी वे में और न्यूट्रिशन के साथ अगर हम लेकर चलें तो हम इसको इजीली इस फेज को क्रॉस कर सकते हैं, स्मूथली इस फेज को पार कर Shilpi, सकते sorry to interrupt. आपका slides नहीं दिख रही हैं. Can you unshare and share that again? हैं। ओके, इज इट विजिबल? Ma'am. Is this visible? No, no, sir. No, ma'am. नहीं, अभी नहीं शिल्पी. I think Yogita is starting to share the screen. That's fine. Okay. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Now visible? हाँ, Yogita, we can see them now. Okay, thank you. Next slide, please. हाँ, सो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हम फॉलो करके और अपने इस मेनोपॉज के फेज को हम स्मूथली क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है जिसमें हम बताना चाह रहे थे कि आप अपने, कई बार क्या होता है कि इस फेज में बॉडी सिम्टम्स जो पहले देती हैं, मेनोपॉज ऐसा नहीं है कि 1 साल में ही हो जाता है, इस ये शुरुआत होते हैं तो पहले से 5-6 साल तक से बॉडी अपना सिम्टम देना शुरू कर देती है, और उस वक्त अगर अपनी बॉडी को हम समझ पाए तो हम पहले से तैयारी कर सकते हैं इसकी। जैसे अगर हम शुरू से ही, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी सिम्टम्स ये देती है, कई बार वेट गेन होना शुरू हो जाता है, तो अगर हम शुरू से न्यूट्रिशन को फोकस करके चलेंगे, साथ में लेकर चलेंगे, तो हम इस फेज के बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनको कम कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, फीमेल्स जो हैं वो सिंपल जो घर में खाना बचता है वो खा लेती हैं, या फिर जो लेफ्ट ओवर होता है उसी से काम चला लेती हैं, जिससे कि अब क्या होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाती है। और ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इनको ना लेकर जो भी थोड़ा बहुत बचता है बस उससे काम चला लेती हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें कि अपने प्लेट को 50% कम से कम फ्रूट एंड वेजिटेबल को जरूर से उसमें जगह दे, और खासकर ये रॉ फॉर्म में जितने भी होते हैं
ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स से लड़ने में बहुत हेल्प करता है। खासकर इसमें फाइबर्स होते हैं, तो आपको जो वेट गेन हो रहा है उसमें आपको हेल्प करता है कि वेट आपका कम बढ़े, या अगर बढ़ रहा है तो लूज भी वेट ये कराता है। फाइबर होने के कारण इससे अर्ली सटाइटी मिलती है, जिससे पेट आपका जल्दी भर जाता है, और आप जो क्वांटिटी में खाते हो उससे थोड़े कम क्वांटिटी में आप खा पाते हो, जल्दी पेट भरने की वजह से। साथ ही साथ ये स्टमक में थोड़ी ज्यादा टाइम तक ये स्टे करता है, तो आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करते हैं। जो हॉट फ्लैशेस भी आपको होते हैं इस टाइम पे, सिम्टम्स जो आते हैं उससे लड़ने में हेल्प करते हैं। स्लीप पैटर्न इस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब होता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये लोडेड होते हैं डिफरेंट विटामिन से, मिनरल से, फाइटोएस्ट्रोजन से। तो ये जो मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं उनको उनसे लड़ने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इनका अपना दूसरा जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो है, इनके माइक्रो मिनरल्स जो हैं जो आपकी बॉडी पे काम करते हैं कि ब्लड मेटाबॉलिक डिजीज को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करते हैं, साथ ही साथ आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरी चीज है, अक्सर देखा गया है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे बोन की डेंसिटी कम होती जाती है, साथ ही साथ बोन थोड़े वीक भी होने लगते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल है, हम सनलाइट तो में भी एक्सपोज कर सकते हैं। सुबह की जो 20 मिनट की धूप होती है उससे विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में, विटामिन डी बनता है, और साथ में ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इनहेंस करता है। कुछ फूड आइटम है जिसको हम अपने डाइट में इंक्लूड कर लें तो ये भी आपको बोन हेल्थ में हेल्प करती है, जिससे कि बोन जैसे फ्रैक्चर होने के कम चांसेस होते हैं, बोन लॉस आपका प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें कुछ आइटम्स हैं जो आपको फाइबर भी देते हैं और साथ ही साथ आपको कैल्शियम रिच भी होते हैं। सोए में, आलमंड्स में, ड्राइड फिग्स में, वाइट बीन्स और लेंटिल्स में, सीड्स में, रागी में, जो आजकल जैसे मिलेट्स है उसमें भी कैल्शियम और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सब होते हैं। तो इन सबको डाइट में शामिल करके हम कैल्शियम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट। कई बार वेट को कम करने के चक्कर में फीमेल्स जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं, वो अक्सर अपने कार्ब्स को कम कर देती हैं। लेकिन कहना ये है कि हम अपने कार्ब्स में सिंपल कार्ब्स को कम करें, ना कि हम होल ग्रेन्स को, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, उनको कम करें। ये मल्टीपल ये जो ग्रेन्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तो देते ही हैं, फाइबर्स भी देते हैं, और अगर हम इनको डाइट में शामिल नहीं करेंगे तो कई बार एनर्जी तुरंत नहीं मिल पाती है, ब्रेन फॉगिंग होती है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्ब्स को जरूर से इंक्लूड करें। अभी मिलेट्स जो है वो बहुत चल रहे हैं, तो अगर हम चाहें तो इन सबको बदल कर, जैसे कई सारे मिलेट्स होते हैं, तो एक साथ ना मिक्स करके हम डिफरेंट मिलेट्स को, जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं, बैनियार्ड मिलेट्स, ब्राउन टॉप मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, कोडो मिलेट्स, इन सबको हम बारी बारी से एक एक दिन करके अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। खिचड़ी के फॉर्म में, पोहा के फॉर्म में, उपमा के फॉर्म में, और कई बार इनके फ्लावर बनाकर हम उसकी रोटी भी बनाकर खा सकते हैं। तो इस तरह के जो मिलेट्स हैं या होल ग्रेन्स हैं वो कैंसर से भी फाइट करने में हेल्प करता है, हार्ट डिजीज मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, और वेट गेन नहीं होने देता है। नेक्स्ट। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि वेट गेन के लिए लोगों को ऐसी मिथ्स हैं कि फैट नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये मेनोपॉज का जो या अर्ली लेट हमारी 40s 50s का जो टाइम होता है, इस टाइम पे हमारे पास हेल्दी फैट्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इनको भी हमें डाइट में जरूर से इंक्लूड करना चाहिए, जो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच होते हैं, जो हमारे बैड कोलेस्टेरॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बढ़ाते हैं। साथ ही साथ इन फैट्स की जरूरत हमारे बॉडी में विटामिन के अब्जॉर्प्शन के लिए भी चाहिए। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो तब तक अब्जॉर्ब नहीं होंगे बॉडी में जब तक उनको फैट नहीं मिलेगा।
तो अपने डाइट में हेल्दी फैट्स जो डिफरेंट सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, फिश होते हैं, इनको जरूर से इंक्लूड करें, जिससे कि मेनोपॉजल सिम्टम्स जो हॉट फ्लैशेस आते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, उनको रिड्यूस करता है। जो इन्फ्लामेशन होती है बॉडी में अंदर, उसको कम करता है। और जो जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, उनको फिर से बनाने का काम करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे थोड़े से सीड्स खा लिए, एक दिन खाए, दूसरे दिन नहीं खाए, और जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स होते हैं उस टाइम पे पैकेज फूड और डिफरेंट प्रोसेस फूड की तरफ जाते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ये सारे सीड्स हैं, इनको डाइट में इंक्लूड करें। इनके जैसे पंजीरी के फॉर्म में सारे सीड्स को मिक्स करके डेट्स के साथ, जो प्लांट बेस्ड शुगर है उसको यूज करके, डेट्स लड्डू के फॉर्म में आप बनाकर इसको मिड इवनिंग स्नैक में आप यूज कर सकते हैं। और चूंकि ये फैट रिच ऑलरेडी है, गुड फैट है, तो ये आपको सटाइटी भी देगा और लंबे टाइम तक भूख भी नहीं लगेगी। साथ ही साथ इसके अपने बेनिफिट्स है, जैसे मैंने डिस्कस किया कि हॉट फ्लैशेस को कम करते हैं, क्रैम्प्स को कम करते हैं। कुछ जैसे है आपको पंपकिन सीड्स हो गए, वॉलनट हो गए, खसखस हो गए, आलमंड्स हो गए, इन सबको हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो इसके अपने अपने पोर्शन है, मैं अभी डिस्कस करूंगी और आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे इनको आप डाइट में ले सकते हैं, पंजीरी के फॉर्म में या लड्डू के फॉर्म में। नेक्स्ट, अब आती है प्रोटीन की बारी। इसमें भी जैसे देखा गया है कि अक्सर इस टाइम पे या 40s 50s के एज में आते आते मसल मास कम होने लगता है। जो स्किन है वो लूज हो जाती है, मसल लूज हो जाती है, बोन वीक हो जाते हैं, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइंस आने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम प्रोटीन हमारी डाइट में प्रॉपर होंगे, तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। खासकर एनिमल बेस्ड जो वेजिटेरियंस हैं, उनको लगता है कि हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, सारे प्रोटीन तो नॉन वेज में ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन भी बहुत हैं। जितनी तरह के दालें हैं, लेंटिल्स हैं, वो सब प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं। खासकर जो सोया है, उसमें फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं, जो हमारे नेचुरल, जो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन होते हैं, उससे बहुत मिलता जुलता होता है। तो कई बार जैसे सोयाबीन को एज ए दाल भी हम ले सकते हैं, सोया मिल्क भी ले सकते हैं, या अगर पनीर नहीं खाना चाहें तो आप टोफू को डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन भी मिल जाते हैं और इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं। नेक्स्ट, हम प्रोसेस फूड की, जैसे अभी मैंने बात की कि हमारा जो मिड स्नैक टाइम होता है, कई बार हम चाय के साथ पैकेट खोल लेते हैं और ना जाने कितने अमाउंट में बिस्किट्स और चिप्स खा लेते हैं, पता भी नहीं चलता। छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, लेकिन उसमें अगर देखें तो बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में ज्यादा कैलोरी, फैट और सॉल्ट होता है। तो कोशिश करें इन सब चीजों को हम फ्रूट बोल से रिप्लेस करें, नट्स एंड सीड्स से रिप्लेस करें, पंजीरी या लड्डू जो घर में बने हुए होते हैं उनसे रिप्लेस करें, स्प्राउट से रिप्लेस करें, जिसमें फाइबर भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन भी होते हैं, विटामिन बी होते हैं, विटामिन सी होते हैं। इनको डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाकर हम पेट भर के वो खा सकते हैं और कैलोरीज भी इसमें कम मिलती है। तो कोशिश करें कि पैकेट फूड को रिप्लेस करें घर के बने हुए स्नैक से। और घर, ये स्प्राउट्स और फ्रूट बोल जो सीजनल हैं, लोकल हैं, जो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल है, जो आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए उस सीजन में परफेक्ट है। नेचर ने ऐसे ही बनाया है। जब गर्मी का मौसम होता है, ये ड्राइनेस होती है, तो आप देखेंगे कि हाई वाटर इनटेक वाले कंटेंट वाले फ्रूट एंड वेजीज आपको मिलते हैं। जैसे अभी दिल्ली में गर्मी है, तो यहाँ पे वाटरमेलन, मस्क मेलन, खीरा, ककड़ी, इस टाइप की चीजें मिल रही हैं, जो पानी जिसमें ज्यादा होता है, क्योंकि अभी हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से हमें ज्यादा फ्लूइड और लिक्विड की जरूरत होती है। तो इन सब चीजों को जरूर से शामिल करें डाइट में। नेक्स्ट, दूसरी चीज होती है कि हैप्पी हॉर्मोन्स, जो मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी। कई बार इन इस टाइम पे
बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, तो मूड स्विंग्स करना, डिप्रेशन होना, ये सारी चीजें बहुत आम है। हम डाइट में कुछ चीजों को डालकर हम इन सब चीजों से अपनी बॉडी को लड़ने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे वॉलनट है, इसके फैटी एसिड्स जो होते हैं, जो किवी है, उसमें विटामिन सी होते हैं जो हॉट फ्लैशेस से आपको रिलीफ देते हैं। आमंड मिल्क है, अगर हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर रात में सोने से पहले ले लें तो बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि ये इससे आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में चली जाती है। कई बार अगर आपको डायबिटीज नहीं है या शुगर कंट्रोल में चल रही है तो 1 स्लाइस ऑफ मैंगो वो आपके मूड को अपलिफ्ट करता है। गुलकंद जो हॉट फ्लैशेस में बहुत काम आते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं तो थोड़ा सा गुलकंद अगर खा लेंगे तो ये आपको कूल एंड काम करेगा, ब्रेन को बिल्कुल सूद कर देता है और सोने में आपको हेल्प करता है। कई फिर सौंफ का पानी या सौंफ की चाय जो होती है वो भी लेने से आपको आपको स्लीप थोड़ा इम्प्रूव करता है। इन सब चीजों को डाइट में जरूर से इंक्लूड करें, बट हमेशा ये सारी चीजें अपने एक्सपर्ट से, अपने मेडिकल प्रोफेशनल जो भी होंगे उनसे पूछकर उनके हेल्प से ही आप इनको डाइट में शामिल करें, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए क्या ठीक है आपके वो ब्लड रिपोर्ट्स को देखकर वो डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज है, ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल, और कैफीन वाली चीजें हैं वो इस टाइम पे जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको बहुत ट्रिगर करती हैं, तो इनको जितना हो सके अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि हम तो 30 ml ही लेते हैं तो ये सेफ लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेफ लिमिट नहीं होता। अल्कोहल और कैफीन, हमेशा स्मोकिंग, ये सारी चीजें आपकी बॉडी के कहीं ना कहीं से हार्म ही करती है, कोई फायदे की चीज नहीं है। अब मैं आपको थोड़े से नट्स एंड सीड्स का दिखाऊंगी जो पोर्शन होते हैं, तो इनको जरूर से, जैसे अभी मैंने बोला हैंडफुल ऑफ नट, मतलब आपके हाथ में आ जानी चाहिए जिसमें सारे नट्स हो और आपकी मुट्ठी बंद हो जानी चाहिए, इस टाइप से ये नट्स हैं जो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें एक साथ आपको मिल जाते हैं। इसमें फैटी एसिड्स है और ये कोलेजन बिल्डिंग में हेल्प करता है, जिससे कि आपकी बोन का बहुत सारा पार्ट बना हुआ है। तो बोन हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, मूड स्विंग्स के लिए, इन सब चीजों के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसा मैंने खसखस के लिए बोला था, तो खसखस की अपनी एक लिमिट है, जो हमारे जो नॉर्मल टेबल टी स्पून है, जो 5 ग्राम का टी स्पून है, इससे हम पूरे दिन में 2 चम्मच खसखस को हम डाइट इसमें सैलेड के ऊपर टॉपिंग के फॉर्म में, या हम चाहे तो रोस्टेड खसखस हम लड्डू या पंजीरी में डालकर हम इसको ले सकते हैं। ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट इन सब से रिच होता है और आपके बोन हेल्थ के लिए, क्रैम्प्स के लिए बहुत फायदेमंद है। उसी तरह से सीड्स की मैं बात करूंगी, जो मिक्स सीड्स होते हैं, जिसमें सेसमे सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, इसके भी अगर हम 5 ग्राम, जो 1 चम्मच होता है, इसको हम लें तो ये भी हमें जितने भी तरह के जॉइंट पेन्स में आपको रिलीफ देता है, जितने तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, जरूरी है, ये सब इसमें मिलता है। बेरीज और रेजिन को मैं जरूर से इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि ये सारे आयरन रिच भी होते हैं और डिफरेंट कंडीशन में जितने भी आपके मेनोपॉज से रिलेटेड आपके सिम्टम्स हैं उससे उसमें रिलीफ देता है, उस बॉडी को आपको रिलैक्स और सूद करता है। अंजीर को जरूर से डालें, अंजीर, 2 अंजीर कम से कम पूरे दिन में अगर आप लेते हैं तो ये भी आपको कॉन्स्टिपेशन से हेल्प करता है, ब्लोटिंग में आपको प्रिवेंट करता है, और और भी जैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, इसमें आपको हेल्प करता है, इससे रिलीफ करता है आपको। सोने से पहले अगर नींद नहीं आ रही हो, नींद आने में परेशानी होती है, तो सौंफ का पानी लेकर, और अगर थोड़े से पिस्ताचियोज, अगर 10 to 15 पिस्ताचियोज अगर हम खाते हैं तो वो भी आपको थोड़ी देर में नींद अच्छी लाने में हेल्प करता है। तो कोशिश करें कि इन सारी चीजों को डाइट में इंक्लूड करें और मेनोपॉज को अपना पॉज नहीं बनाएं। थैंक यू। ओवर टू। Thank you so much, Shirley ma'am. I think I would like to address a few questions I've received in my email, and there were some in the chat box also. Um,
I think Sonia, you have mentioned something about how can we take care of this, and I wasn't clear about what exactly you wanted to ask. If you can, resend the question to us, that'll be great. And then I've got some other questions in my email here, which I'm going to share. And there's some for you also, Mrs. Shilpi. Um, hmm. So there's this question that after menopause also, do we need to get a gynae checkup done? So I think, I don't know, somehow, as a woman, we tend to have this fear about the gynae checkups. Is it, it's about the hesitation that, okay, you have to undress yourself and get a gynae checkup done. But, these gynecologists, they do this day in and day out. It's their job to do that. It is not supposed to be an uncomfortable experience. It is something which is very important in screening for some particular cancers, which can very well be treated if picked up well on time. So, जो गायनी चेकअप का मेन पर्पस होता है, एक तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, जो सर्विक्स का कैंसर जो है तो उसका दो मेन एजेस होती हैं जिसमें वो पीक इंसिडेंस होता है. एक तो होता है बिटवीन 20 to 40 और एक होता है आफ्टर मेनोपॉज. सो आफ्टर मेनोपॉज जस्ट बिकॉज पीरियड होना बंद हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गायनी चेकअप की जरूरत नहीं है. इट इज इम्पोर्टेंट कि once in 5 years you get your gynae checkup done. It is not something which we need to get done on a yearly basis, but yes, once in 3 to 5 years, depending on your own history and family history of cancers and things like that, the gynecologist is going to guide you how frequently you need to get that done. But अगर कोई family में history नहीं है या personal history नहीं है तो once in 3 to 5 years gynae checkup जरूरी रहता है ताकि cervical examination भी हो सके और pap smear हो सके, and we can screen for cancers early on and treat them early on ताकि उससे प्रॉब्लम ना आए. अब होता क्या है, सर्वाइकल कैंसर के लिए अलग से इसलिए स्क्रीनिंग जरूरी है बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज पिक्ड अप अर्ली विदाउट पर्टिकुलरली चेकिंग फॉर दैट. वो काफी डीप सीटेड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हमें पहले से उसके सिम्टम्स नहीं रहते हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू गेट दैट चेकअप डन once in 3 to 5 years and breast examination also along with that. एक और क्वेश्चन था मेरे लिए that about herbal supplements available in the market for menopause. So कई सारे herbal supplements available होते हैं. Thing is that there is no scientific study and data to support the use or show the efficacy of these herbal supplements per se, and a lot of them are actually being marketed as ये मेनोपॉज का सप्लीमेंट है, ये पीसीओएस का सप्लीमेंट है, and they are being marketed at 3 to 4 times the cost of what otherwise a prescription supplement would be available. So be careful about the use of these herbal supplements which are available outside, and try not to use them over the counter and buy them over the counter by yourself. Do talk to your doctors regarding that. Yes, there are certain supplements which we do recommend. So it's always a good idea to check and take these things accordingly. And menopause के बाद ज्यादातर जो भी ये symptoms वगैरह रह रहे होते हैं, जो भी treatment होता है, वो डिपेंड करता है कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है. ऐसा नहीं है कि जो चीज मेरी सिस्टर के लिए काम किया तो वही चीज मेरे लिए भी काम करेगी. माई प्रॉब्लम माइट बी इंटायरली डिफरेंट, चाहे सिम्टम्स हमारे एक जैसे हो लेकिन द प्रॉब्लम माइट एक्चुअली बी टोटली डिफरेंट. सो प्लीज अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन ऑन देम. एंड शिल्पी मैम, देयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू. एक है कि थायराइड प्रॉब्लम है तो क्या हम सोया और कॉलीफ्लावर वगैरह ले सकते हैं? कई सारे मिथ्स हैं इसको लेकर. तो ऐसा होता है कि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से बोलते हैं कि इनको कच्चा नहीं खाना चाहिए. कोई भी क्रूसीफर्स जो हैं वो हम रॉ फॉर्म में नहीं खाएं. अगर हम इसको पका देते हैं, जो हमारी इंडियन कुकिंग में होती है कि हम किसी भी चीज को ओवर कुक करके खाते हैं, तो अगर हम इसको कुक करके खाते हैं तो ये कहीं से भी आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है.
सोए के साथ भी ये है कि हाँ, इसको हम पूरी रात भिगोते हैं, 6 से 7 घंटे इसको भिगो कर छोड़ते हैं और फिर कुक करके खाते हैं, तो ये फिर सेफ है लेने में। मतलब एंटी न्यूट्रिएंट्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुकिंग में और उसको सोक करने में। Okay. And there's one more, but I think you've already answered that. Okay, how much amount of seeds can we consume in a day? हाँ, वो तो जो आपने already बताया 1 teaspoon 5 ग्राम के करीब। आपका फ्रीज हो गया शिल्पी मैम, कोई बात नहीं। So I think ये तो उन्होंने already answer कर दिया है कि how much seeds we can consume in a day, around 1 teaspoon. So, and I don't see any other questions in the chat box for now. And so that brings us to the end of the presentation, but I would like to invite Mrs. Malvika Singhal to say a few words and share her journey and also talk about the work that she's doing. Right. So thank you, Dr. Hemi and Dr. Shilpi. I'm audible. I'm hoping I'm audible and viewable, and you can see me on camera. So Yes. thank you so much, for this webinar, live webinar that you are doing. And I know you do a lot of these education platforms. And thank you for collaborating with Bloom for this today. I just want to talk a little bit about myself and this community that I have founded and I'm representing. So my name is Malvika. As I said, I live in Gurgaon. I'm a woman in my mid-40s. Now, in the last few years, I struggled very badly with perimenopause. And when I started struggling and I was going through the struggle, I had no idea what I was going through. So, be it physical symptoms, psychological symptoms, emotional issues, plus the psychological, plus the physiological changes I was going through on a personal level, I just did not know what was hitting me. And that is the time when I also figured out that many women that I talked to in the same age group, similar age group, up and above, also had no clue. So the realization came that there is something known as perimenopause. So then I started approaching it like an educated person. I went and met the doctors. I started reading about it. I started looking at YouTube videos. So kind of understood that there is something which is very real and which all of us will go through at some point in life. And these things that I'm going through are not, again, something very, very unique to me or something terrible is happening to me. It's just that we all will go through some forms of these symptoms. And I think being better prepared just helps you manage this phase better. And that's where this journey started when I started a community in 2023 January called Bloom Demystifying Menopause. And it's been more than a year. We have like 400 plus people on our Facebook group, followers on Instagram. We are going to be launching a website very soon. We are doing webinars with amazing doctors like yourself, Dr. Hemi, who are also trying to help us create this awareness with the women around us. So Bloom Demystifying Menopause is first and foremost a very safe, trusted place where women can come together and talk about their issues. So that's one of the main reasons why this was formed, because we don't want to feel alone. We shouldn't feel like this is only happening to me, and learning from other people's experience and journeys and how they can do, which doctor did they go to, something that helped them in this phase, maybe a simple solution to not getting enough sleep in the night problem. And all these things can be discussed openly and confidentially on the groups that we have. Then obviously, using this platform to provide the right information, the knowledge. Like, let's not live with myths. Let's not live with knowledge of our grandmothers or mothers who probably did not know so much, which are, so having doctors and the right healthcare providers telling us the right things, the right information also kind of makes the whole thing much, much easier. And the third is obviously making it normal to talk about menopause. I still find that people are hesitant talking about menopause or even admitting that they are going through perimenopause or menopause. So how can we make it
a normal part of a woman's conversation or a man's conversation, who are your, again, as Dr. Hemi started, they could be your fathers, they could be your husbands, your partners, your sons. How can we make it normalize? So normalize talking about menopause and getting the right support was the key ideas behind starting Bloom. So feel free to join us. We are there on Instagram. Follow us. We are there on Facebook. And we are very soon going to be launching the website. We'll be giving all these information plus these videos and webinars with amazing doctors right there and in one platform. So Bloom, because at every stage and age of your life, every woman deserves to bloom. So that's Dr. Hemi. Really appreciate you giving us this platform and helping us demystifying this further. It's absolutely a privilege, and I'm glad there are people like you who are starting to create that awareness, because I think it's a different thing when it comes from a woman, and it's a different thing when it comes from a doctor. It is not something which is a medical things for you and make life easier for you. So thank you so much, everyone, and we'll wrap up for the day. Thank you so much, everyone. Thank you, Ms. Shilpi, and thank you, Malvika, again. And thank you, Yogita, for hosting the session today. And we will see you all soon next month with, I think, on adult vaccination. And we'll be doing a session on that. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye. Yeah, thank you so much, ma'am. So from my name, ending this meeting.